السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ بیجنگ میں نیشنل پیپلز کانگریس کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہوا۔ چینی صدر شی جن پنگ سمیت دیگر رہنما اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ لی چیانگ نے ریاستی کونسل کی جانب سے سالانہ رپورٹس پیش کی۔ اجلاس کے دوران حکومتی کارکردگی کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ 5 مارچ کو بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں چین کے سب سے بڑے ریاستی ادارے نیشنل پیپلز کانگریس کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہوا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری، سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین اور چین کے صدر شی جن پنگ سمیت دیگر چینی رہنما اجلاس میں شریک NPC کے 2872 نائبین میں شامل تھے۔ وزیر اعظم لی چیانگ نے ریاستی کونسل کی جانب سے سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2023 نہ صرف 20ویں CPC نیشنل کانگریس کے رہنما اصولوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا پہلا سال تھا، بلکہ یہ قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دینے کے لیے اس حکومت کا بھی پہلا سال تھا۔ غیر معمولی پیچیدہ بین الاقوامی صورتحال، اصلاحات و ترقی کو آگے بڑھانے اور اندرون ملک استحکام کو یقینی بنانے کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کامریڈ شی جن پنگ کے ساتھ پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے تمام قومیتی گروہوں کو اکٹھا کیا اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے نیز داخلی مشکلات پر قابو پانے میں چینی عوام کی رہنمائی کی۔ 7 روزہ اجلاس کے دوران NPC کے نمائندے حکومتی کارکردگی کی رپورٹ کا جائزہ لیں گے، 2023 کے قومی اقتصادی اور سماجی ترقی کے منصوبے پر عمل درآمد اور 2024 کے منصوبے کے مسودے، قومی معاشی اور سماجی ترقی برائے 2024 کی رپورٹ کے مسودے، مرکزی اور مقامی بجٹ 2023 پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ اور مرکزی اور مقامی بجٹ 2024 کے مسودے پر نظر ثانی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی کونسل کے نامیاتی قانون میں ترمیم کے مسودے کا جائزہ لینے سے متعلق NPC اسٹینڈنگ کمیٹی کے پیش کردہ بل، NPC اسٹینڈنگ کمیٹی، سپریم پیپلز کورٹ اور سپریم پیپلز پروکیوریٹر کی ورک رپورٹس کا بھی جائزہ لیں گے۔ بیجنگ میں چینی پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ CPPCC قومی کمیٹی کے چیئرمین وانگ ہونگ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی ورک رپورٹ میں 2024 کے اہم کاموں کا خاکہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سال مقررہ اہداف کو پورا کرنے کا اہم سال ہے۔ 4 مارچ کو بیجنگ میں چینی پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس CPPCC کے سالانہ اجلاس کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر CPPCC قومی کمیٹی کے چیئرمین وانگ ہو نینگ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی ورک رپورٹ میں 2024 کے اہم کاموں کا خاکہ پیش کیا۔ وانگ ہو نینگ نے کہا کہ یہ سال 2021 سے 2025 کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے مقررہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم سال ہے۔ انہوں نے CPPCC کے ارکان سے کہا کہ چینی جدیدیت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کریں اور پارٹی کے اختراعی نظریات کے متعلق کو مزید مضبوط کریں تاکہ جو کچھ سیکھا ہے اسے سیاسی مشاورت، جمہوری نگرانی اور سیاسی امور میں شرکت کی حقیقی صلاحیتوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خصوصی مشاورتی ادارے کے طور پر CPPCC کے کردار سے فائدہ اٹھانے، CPC سینٹرل کمیٹی کے اہم فیصلوں اور انتظامات، ملک کی اہم اسٹریٹجک ضروریات اور ترقی کے اہم عملی امور پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تجاویز پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وانگ ہوننگ نے سفارتی تبادلوں اور عالمی سطح پر چین کی آواز کو پھیلانے میں CPPCC کے کردار پر بھی روشنی ڈالی، جس کا مقصد انسانیت کے مشترکہ مستقبل کی حامل کمیونٹی تشکیل دینا ہے۔ پاکستانی صحافیوں نے چین کے 2 سیشنز میں خوب دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ سینئر رپورٹر محمد ضمیر اصلی کا کہنا ہے کہ 2 سیشنز اور ان سیشنز کی کوریج سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ چین کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی سرکاری ایجنسی کے نیوز ڈائریکٹر ریاض ورکی کا کہنا ہے کہ ہمارے اہم ایڈیٹوریل اہداف میں ایک چین کی ترقی کے بارے میں چینی صدر کی سابقہ تقاریر کو 2 سیشنز کے ساتھ منسلک کرنا تھا۔ 4 اور 5 مارچ کو منعقد ہونے والے چین کے 2 سیشنز کے حوالے سے سینئر رپورٹر محمد ضمیر اسدی کا کہنا ہے کہ 2 سیشنز اور ان سیشنز کی کوریج سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ چین کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور یہ کہ چین کی ترقی صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بین الاقوامی برادری کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی معاشرے کو سوشلسٹ جدیدیت کا احساس ہے۔ یہ جدیدیت انسان کے مشترکہ مستقبل کے بارے میں ہے اور چین کی جدیدیت کی یہ مہم بین الاقوامی برادری اور ترقی پذیر ممالک کے لیے امید افزا
और मौक़े से भरपूर है। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी के न्यूज़ डायरेक्टर राज बर्की का कहना है कि हमारे अहम एडिटोरियल अहदाफ में से एक चीन की तरक्की के बारे में चीनी सदर की साबिका तकारीर को 2 सेशंस के साथ मुंसलिक करना था। इस काम की तकमील के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग की तकारीर का जायजा लिया और इन तकारीर में सबसे पहले सबसे अहम चीन की तरक्की है, दूसरे चीन की जदीदियत है। तकरीबन तमाम तकारीर में अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल का अहाता किया गया है। चीन की पहली खातून खलाबाज ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की नाहद की हैसियत से खला स्टेशन में मौजूदा अमले से बातचीत की। ल्यू योंग ने 2 सेशंस में पेश करने के लिए खलाबाजों की तजावीज़ भी नोट की। साल 2022 में ल्यू योंग चीन की पहली खातून खलाबाज की हैसियत से 6 माह तक मदार में रह चुकी हैं। चीन की पहली खातून खलाबाज लियो जोंग, जिनको गुज़श्ता साल कौमी स्पेस लैब की आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुक़र्रर किया गया था, उन्होंने 2 सेशंस की तैयारी के लिए NPC की नायब की हैसियत से चीन के खलाई स्टेशन में मौजूद शेंज़ू 17 के अमले के तीनों खलाबाजों से खुसूसी बातचीत की और 2 सेशंस में पेश करने के लिए इन खलाबाजों की आरा और तजावीज़ नोट की। साल 2022 में लियो जोंग खला में चीन की पहली खातून खलाबाज की हैसियत से 6 माह तक मदार में रहीं। जब चीन का खलाई स्टेशन इत्तलाक़ व तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हुआ तो उन्होंने इस शोबे में होने वाली साइंसी तहक़ीक़ के लिए अपने तजुर्बात पेश किए। लियो जोंग के मुताबिक स्पेस लैब न सिर्फ खलाई तजुर्बात के लिए एक आला दर्जे का प्लेटफॉर्म है, बल्कि मुस्तक़बिल में डीप स्पेस में जाने के लिए चीन की एक बुनियादी तजुर्बाती बुनियाद भी है। ये खलाई तजुर्बागाह ताउन के लिए ओपन मैकेनिज़्म के साथ बैनुल-अक़वामी खलाबाजों का खुले दिल से खैर मक़दम करेगी, ताकि साइंसी तहक़ीक़ के ज़्यादा आला मयार के हामिल नताइज हासिल किए जा सकें। CPPCC की कौमी कमेटी की रुकन लाइन जैन देही तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत मेहनत कर रही हैं। उन्होंने गुज़श्ता 1 साल में अपनी टीम के साथ 30 से ज़ायद देही स्कूल्स का दौरा किया। इस दौरान स्ट्रक्चरल स्टाफ की कमी और ज़िमनी मज़ामीन के असातिज़ा की शदीद क़िल्लत के फौरी तवज्जो तलब मसाइल सामने आए। CPPCC की कौमी कमेटी की रुकन और सूबा फुजियान में यांगजू तजुर्बाती प्राइमरी स्कूल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कमेटी की सरबराह लियन जैन देही तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत मेहनत कर रही हैं। उन्होंने पिछले 1 साल में अपनी टीम के साथ 30 से ज़ायद देही स्कूल्स का दौरा किया तो देही असातिज़ा की तरबियत के तरीक़ाकार, स्ट्रक्चरल स्टाफ की कमी और ज़िमनी मज़ामीन के असातिज़ा की शदीद क़िल्लत के फौरी तवज्जो तलब मसाइल इनके सामने आए। देही असातिज़ा की हकीकी ज़रूरियात की बेहतर समझ बूझ के लिए लियन ने मुसलसल 2 साल तक सर्वे किया। इस सर्वे की बुनियाद पर उन्होंने इस साल के 2 इजलासों में देहात के असातिज़ा का मयार मज़ीद बेहतर बनाने और लाजमी तालीम की आला मयार की हामिल मुतवाज़न तरक्की को तेज़ करने के बारे में तजवीज़ पेश की। CPPC मेंबरान के साथ मुतालिका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के बाद उन्हें उम्मीद है कि देही असातिज़ा की तरबियत के लिए एक ग्रीन चैनल खुलेगा और जिन मज़ामीन के असातिज़ा की कमी है उनके लिए इलाकाई गर्दशी निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा, ताकि देही असातिज़ा के लिए मौज़ूनियत के एतबार से एक नया तरबियती मॉडल तैयार हो और देही तालीम को बेहतर बनाया जाए। चीन के ज़्यादातर सूबों ने रवां साल के लिए जो इक़्तिसादी तरक्याती अहदाफ मुकर्रर किए हैं उनमें मुकामी जर्नल बजट आमदन में तकरीबन 4.4% का औसत इजाफा मुतवक्की है। माली बजट रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज़ायद चीनी सूबों के लिए जर्नल पब्लिक बजट आमदनी के लिए अहदाफ 3% से 6% तक हैं। सूबा जालन के भी जर्नल पब्लिक बजट आमदन में तकरीबन 10% इजाफे की तवक्को है। चीन के ज़्यादातर सूबों ने 2024 के लिए जो इक़्तिसादी तरक्याती अहदाफ मुकर्रर किए हैं उनमें मकामी जनरल बजट आमदन में तकरीबन 4.4% का औसत इजाफा मुतवक्को है। माली बजट रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 20 से ज़ायद सूबों के लिए 2024 में जनरल पब्लिक बजट आमदनी के अहदाफ 3% से 6% तक हैं। शिमाल मशरक़ी चीन के सूबे जीलिन ने भी जनरल पब्लिक बजट आमदन में तकरीबन 10% इजाफे की तवक्को की है, जो सूबाई इलाकों में सबसे ज़्यादा हदफ है। 2024 में 31 सूबों में माली महसूलात की औसत शरह नमू 4.4% की सतह पर रहेगी। मकामी मालियाती बजट रिपोर्ट्स में निशानदही की गई है कि चीनी सूबे माशी और समाजी तरक्की को मुस्तहकम करते हुए लोगों के ज़राए माश में बेहतरी को तरजीह देंगे। इस साल चोंगचिंग के मकामी बजट में हाउसिंग सिक्योरिटी के क़याम और इसमें बेहतरी के लिए 4.65 बिलियन युआन मुख्तस किए गए हैं। मशरक़ी चीन के जीजांग में माली अखराजात का 2/3 से ज़्यादा लोगों के ज़राए माश को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें 369 मिलियन युआन
रोजगार की सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए हैं। 24 फरवरी को इस सूबे के शहर सीसी ने 5 सालों का सबसे बड़ा इन पर्सन जॉब मेला मुनक्किद किया, जिसने रोजगार के 20,000 से ज्यादा मौके फराहम किए। इसके अलावा कोंगचो उम्र रसीदा अफराद के लिए 5 सपोर्ट सेंटर्स तामीर करने के लिए इस साल मजमूई तौर पर 35.66 बिलियन युआन का इंतजाम करेगा। शहरी इलाकों में रोजगार के 2,40,000 नए मौके पैदा करना, सरकारी सब्सिडी वाले 10,000 हाउसिंग यूनिट्स और कम किराए वाले 1 लाख रहायशी यूनिट्स की तामीर भी मंसूबे में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि 5.5G नेटवर्क की बर्क रफ्तारी से तरक्की की मनाजिल तेजी से तय होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत रिमोट मॉनिटरिंग और रियल टाइम डाटा का तज्जिया ज़्यादा बेहतर अंदाज से होगा। 5.5G नेटवर्क की सलाहियतों में इजाफे से मुख्तलिफ सनतों में ज़्यादा भरपूर डिजिटल पैदावारी सलाहियत का आगाज होगा। माहिरीन के मुताबिक 5.5G नेटवर्क की बर्क रफ्तारी और ताअत्तुल में कमी की सलाहियत सनती मैन्युफैक्चरिंग के अमल में रिमोट मॉनिटरिंग और रियल टाइम डाटा के तज्जिए को ज़्यादा मौसर बनाएगी, जबकि 5.5G इसी साल तिजारती इस्तेमाल के लिए भी दस्तयाब होगा। 5.5G नेटवर्क की इंटरनेट ऑफ थिंग्स सलाहियतें सप्लाई चेन के मुख्तलिफ मराहिल में रियल टाइम डाटा शेयरिंग और ताउन को मुमकिन बनाती हैं। ये नेटवर्क नकलो हमल के लिए मुस्तअमिल ऑटोमेटिक कार्स और स्मार्ट ट्रैफिक जैसे AI सिस्टम को मजबूत मावनत फराहम करता है। 5.5G नेटवर्क की सलाहियतों में इजाफे से मुख्तलिफ सनतों में ज़्यादा भरपूर डिजिटल पैदावारी सलाहियत का आगाज होगा। इसके अलावा मसनूई ज़हानत, AR, VR और नेकेड आई 3D जैसे उभरते हुए शोबे, जिनको नाकाफी सलाहियत, बिजली की ज़रूरत से ज़्यादा खपत और तवील ताख़ीर जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये नेटवर्क उनकी रफ्तार की ज़रूरियात और इस शोबे में मौजूद खामियों को भी हल कर सकता है। चीन ने मकामी तलब को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी सीरीज मुतारिफ करवाई है, जिससे मुल्क की मईशत की आला मेयार की तरक्की में नई जान पड़ गई है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के आगाज से अब तक कई अहम अशारियों ने मईशत की खुशहाली की सतह में बेहतरी का मुजाहरा किया है। IMF ने भी पेश गोई की है कि चीन की मईशत तवक्कुआत से मुतजाविज होने का इम्कान है। चीन ने मकामी तलब को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी सीरीज मुतारिफ करवाई है, जिससे मुल्क की मईशत की आला मयार की तरक्की में नई जान पड़ गई है। चीन के सबसे बड़े इक़्तिसादी मनसूबा साज इदारे नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने रिवायती खपत को मुस्तहकम और वसी करते हुए न्यू काइंड ऑफ कंजम्पशन के फ़रोग़, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने और कंजम्पशन एक्टिविटीज सीरीज को मुनज़्ज़म करने की भी तजवीज़ दी है। हाल ही में गोल्डमैन साक्स और UBS जैसे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के आगाज़ से अब तक कई अहम अशारियों ने मईशत की खुशहाली की सतह में बेहतरी का मुजाहरा किया है और नए साल के आगाज़ पर माशी कारकर्दगी के मुस्बत अशारिये जारी किए गए हैं। हाल ही में IMF ने 2024 के लिए चीन की मईशत और एशिया में दीगर उभरती हुई मईशतों के लिए तरक्की की तवक्कात में इजाफा करते हुए पेशगोई की कि चीन की माशी तरक्की तवक्कात से ज़ायद होने का इम्कान है। एशिया में उभरती हुई मईशतों के लिए मजमूई इक़्तिसादी तरक्की की शरह इस साल 5.2% तक पहुँचने की तवक्को है, जो गुज़श्ता साल अक्टूबर में की गई पेशगोई से 4% ज़्यादा है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में चीनी साख्ता C919 तैयारे की शमूलियत से तरक्की की नई राहें खुल गई। जदीद तैयारा शामिल होने से जेट लाइन्स के पहले ऑर्डर की तकमील हो गई। गुज़श्ता साल 28 मई को पहले तैयारे ने अपनी अवलीन परवाज़ मुकम्मल की थी और अब चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस चीनी साख्ता C919 की सबसे बड़ी क्लाइंट बन गई है। रवां हफ्ते चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में 5वें चीनी साख्ता C919 तैयारे के शामिल होने से जेट लाइनर के पहले ऑर्डर की तकमील हो गई है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 1 मार्च 2021 को C919 मुसाफिर बरदार तैयारा बनाने वाली कंपनी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से 5 C919 खरीदे थे। ये बड़े मुसाफिर तैयारों का पहला ऑर्डर था। गुज़श्ता साल 28 मई को खरीदे गए पहले C919 तैयारे ने अपनी अवलीन परवाज की और एक दिन बाद शंघाई और चंगदू के दरमियान परवाज़ों का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 28 सितंबर 2023 को मजीद 100 C919 तैयारों का ऑर्डर दिया, जिससे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस चीनी साख्ता C919 की सबसे बड़ी क्लाइंट बन गई है।
इस साल 31 जनवरी तक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का C919 तैयारा 2666 घंटों तक इन सर्विस रहा, जबकि ये अपनी पहली कमर्शियल प्रवास के बाद से मजमूई तौर पर तकरीबन 1,16,000 मुसाफिरों को लेकर 918 कमर्शियल प्रवासें मुकम्मल कर चुका है। चीनी सूबा शानडोंग में कार्बन के अखराज को कम करने में अहम पेशरफ्त हुई है। मशरकी शहर लेक्सी में चीन की पहली होम अप्लायंसेज साइकिलिंग फैक्ट्री ने पुराने अप्लायंसेज को नई काबिल कदर मसनूआत में तब्दील कर दिया है। हाइबर स्मार्ट होम की रिसाइकलिंग इंटरेक्टेड फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का कहना है कि उनकी कंपनी मटेरियल रिसाइकलिंग, पिघलाने और धातुओं को साफ करने के लिए अपने शराकतदारों के साथ बरह रास्त ताउन कर रही है। चीन के सूबा शांगदुंग के मशरकी शहर लेक्सी में चीन की पहली होम अप्लायंसेज रिसाइकलिंग फैक्ट्री ने पुराने अप्लायंसेज को नई काबिल कदर मसनूआत में तब्दील करके कार्बन के अखराज को कम करने में अहम पेशरफ्त की है। रिसाइकिल शुदा अप्लायंसेज जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स में लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और कुछ सख्त प्लास्टिक सबसे कीमती हिस्से हैं। हायर स्मार्ट होम की रिसाइकलिंग इंटरेक्टेड फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का कहना है कि उनकी कंपनी मटेरियल रिसाइकलिंग, पिघलाने और धातुओं को साफ करने के लिए अपने शराकतदारों के साथ बराह रास्त ताउन कर रही है, जिसके बाद इन्हें मुख्तलिफ किस्म के घरेलू आलात तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रिसाइकलिंग की शरह 100% तक पहुंच जाएगी। रिसाइकिल शुदा मवाद से मजीद मुनाफा बनाने के लिए तांबे की ब्लिस्टर्ड तारों और तांबे की खालिस तारों को अलग किया जाएगा। ये तारें तकरीबन 60,000 युआन फी टन में फरोख्त की जा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि घरेलू आलात की रिसाइकलिंग और रीयूज इंटरनेट प्लस मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान कार्बन के अखराज को नुमायां तौर पर कम कर सकता है। एक होम अप्लायंस की रिसाइकलिंग कार्बन के अखराज को तकरीबन 20 किलोग्राम से ज्यादा कम कर सकती है। चाइना एसोसिएशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी का कहना है कि मुल्क में होम अप्लायंसेज रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग की सलाहियत 170 मिलियन यूनिट सालाना तक पहुंच चुकी है, जो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा है। मोबाइल पेमेंट्स के हवाले से चीन दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। 2023 के आखिर तक मुल्क में मोबाइल अदायगियों की शरह 86% तक पहुंच गई। कैशलेस पेमेंट मुल्क भर में तकरीबन हर जगह दस्तयाब है, लेकिन ये बुजुर्गों और गैर मुल्कियों के लिए एक रुकावट भी थी। लिहाजा स्मूथ कैश पेमेंट चैनल्स को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेटर्स को रहनुमाई फराहम की जा रही है। मोबाइल पेमेंट्स के हवाले से चीन दुनिया में सरे फहरिस्त है। 2023 के आखिर तक मुल्क में मोबाइल अदायगियों की शरह 86% तक पहुंच गई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कैशलेस पेमेंट मुल्क भर में तकरीबन हर जगह दस्तयाब है, लेकिन ये बुजुर्गों और गैर मुल्कियों के लिए एक रुकावट भी थी। लिहाजा चीन के मरकजी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने दीगर सरकारी महकमों के साथ मिलकर नकद अदायगियों को मुस्तरद करने के मसले को हल करने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। इसके जरिए स्मूथ कैश पेमेंट चैनल्स को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेटर्स को रहनुमाई फराहम की जा रही है। गैर मुल्कियों के लिए क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी एक मारूफ तरीका है। चीन इसको रद्द नहीं करता, ताहम ये तरीका चीन में मकबूल नहीं है। गुज़श्ता साल के एक सर्वे के मुताबिक बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू और शेंजन में रिटेल एंड फूड स्टोर्स पर ओवरसीज बैंड कार्ड्स की कबूलियत की शरह 40% से भी कम थी। वो POS टर्मिनल्स जो बैरूनी ममालिक के कार्ड कबूल करते हैं, वो दुकानों, रेस्टोरेंट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कम इस्तेमाल होते हैं। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए अदायगी को आसान बनाने की खातिर चीनी बैंकिंग हुक्काम ने फरवरी में बीजिंग के दोनों बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर खुसूसी पेमेंट सर्विस सेंटर कायम किए थे, जो गैर मुल्की अफराद के लिए पेमेंट सर्विसेज की एक वसी रेंज पेश करते हैं, जिसमें ओवरसीज बैंक कार्ड, मोबाइल पेमेंट और करेंसी के तबादले के जरिए अदायगी की सहूलत फराहम की गई है। 2023 के आखिर तक शंघाई में 36,500 से ज़ायद POS मशीन्स थी, जो अहम बिजनेस स्ट्रीट्स, सयाहती मकामात और हवाई अड्डों पर गैर मुल्की बैंक कार्ड्स कबूल करती हैं। इसके अलावा मरकजी बैंक एलीपे और 10पे जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की रहनुमाई करेगा, ताकि मोबाइल अदायगियों का इस्तेमाल करने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए सिंगल ट्रांजैक्शन की हद को $1,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर $5,000, जबकि सालाना लेन देन की मजमूई हद $10,000 से बढ़ाकर $50,000 की जा सके। 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस हवाले से ऑल चाइना वुमेन फेडरेशन ने इतवार के रोज़ बीजिंग में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया। इसका मकसद मुल्क की ख़वातीन रोल मॉडल्स और पे सेटर्स को उनकी नुमाया खिदमात और मिसाली कारनामों के लिए खराज तहसीन पेश करना है।
8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से ऑल चाइना विमेन फेडरेशन ने इतवार के रोज़ बीजिंग में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मकसद मुल्क की ख़वातीन रोल मॉडल्स और पेस सेटर्स को उनकी नुमायाँ खिदमात और मिसाली कारनामों के लिए खराज तहसीन पेश करना था। इजलास में स्टेट काउंसिलर फेडरेशन की चेयरमैन शियन यी चेन ने चीन की तमाम कौमियतों और तमाम शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन और एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर 10 ख़वातीन को 8 मार्च रेड बैनर पेस सेटर्स का टाइटल दिया गया, जबकि 300 ख़वातीन को 8 मार्च रेड बैनर होल्डर्स और 200 ग्रुप्स को 8 मार्च रेड बैनर कलेक्टिव्स तस्लीम किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं नेशनल कांग्रेस के बाद से ख़वातीन की तरक्की में जामे पेशरफ्त हुई है। ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाती है कि वो चीन की जदीदियत में अमली तौर पर शामिल हों और आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देने में अपना हिस्सा डालें। नीज़ ख़ानदान की तालीम और मुस्बत ख़ानदानी अक़दार को फ़रोग़ देने में मुनफरिद किरदार अदा करें। नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने कमाल कर दिखाया। तलबा के ग्रुप ने ऑर्निथॉप्टर के ड्राइविंग मैकेनिज्म की तैयारी में नई कामयाबी हासिल कर ली। ऑर्निथॉप्टर बगैर पायलट के एयरक्राफ्ट है जो मैकेनिकल परों से परवाज़ करता है। इस हवाले से फॉल्कनेट ने बायोनिक फ्लाइंग रोबोट के लिए रिसर्च प्लेटफॉर्म फराहम किया है। सूबा शांसी के शहर शियान की नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप ने उकाब की तरह के ऑर्निथॉप्टर के ड्राइविंग मैकेनिज्म की तैयारी में नई कामयाबी हासिल की है। ऑर्निथॉप्टर एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो अपने मैकेनिकल परों से परवाज करता है। इन तलबा का तैयार करदा नया ड्राइविंग मैकेनिज्म फाल्कनेट अपनी नौइयत का सबसे तेज़ और परिंदों की तरह उड़ने की सलाहियत का हामिल मैकेनिज्म है, जो न सिर्फ फड़फड़ाते हुए परों को जोड़ने की सहूलत देता है, बल्कि परवास के दौरान पर को सिर्फ एक तरफ फोल्ड भी कर सकता है। फाल्कनेट ने बायोफ्लाइंग रोबोट के लिए न्यू डिज़ाइन थॉट और रिसर्च प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जिसमें फ़ौजी जासूसी और माहौलियाती निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत होगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, CGTN की जानिब से इस्लामाबाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चीन की इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान के लिए मौक़ों के ऐवान से होने वाले कॉन्फ्रेंस में साबिक़ निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कौमी सेहत डॉक्टर नदीम जान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने बाहमी तरक्की के लिए दोनों ममालिक को इंसानी तरक्की पर मबनी अहदाफ के तयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात अवाम के दरमियान गहरी दोस्ती पर मबनी और तरक्की के ज़ामिन हैं। CGTN उर्दू की जानिब से इस्लामाबाद में चीन की इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान के लिए मौक़े के उन्वान से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी साबिक़ निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कौमी सेहत डॉक्टर नदीम जान ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाकिस्तान चीन बाहमी तरक्की के समरात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इंसानी तरक्की पर मबनी अहदाफ के तयन की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिक़ निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कौमी सेहत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात अवाम के माबैन गहरी दोस्ती पर मबनी तजर्बात पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की के ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के मनसूबाबंदी के तसलसल और खुद कफालत के रुझान को मिसाल बनाकर तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकता है। Pakistan's and China's friendship, it needs no certificate and no words. And traditionally we say it is deeper than seas and taller than mountains and stronger than iron. I think it's more than that also. And there are some hertz-to-hertz connections between the people of China and the people of Pakistan. So that's also an asset there. Excellencies, I learned a lot, and some information even I would like that we translate this into consolidated form. You know, it was encompassing on the whole national development. The topic is Chinese economic development opportunities for Pakistan, but I see it more than an economy. It's more of a national development, both for Pakistan and for China.
पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के काउंसलर वांग शेंग जिए ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन कई मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए जिद्दत पर मबनी तरजीहात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। And also the fourth area is the IT sector. Khalid just mentioned about this potential. And the Huawei, it has already have 2,080 local employees here in Pakistan. And it diverted from the India to Pakistan to set up its World Service Center. So which is also very positive for us. And also, that even take the safety project, Safe City project in Lahore, for example, it greatly reduced the crime rate and also the traffic jams in Lahore. So it is, I think, even enjoy good potential if we introduce in Islamabad, in other metropolitans and other cities for the different provinces. सेमिनार से डायरेक्टर चाइना मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद स्टूडियो डू जियानिंग, डायरेक्टर चाइना स्टडीज सेंटर नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद शियांग यांग, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, फेडरल एक्साइज एंड सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के साबिक चेयरमैन हाफिज एहसान अहमद खोकर, डायरेक्टर पाक चाइना स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कोमोडोर रिटायर्ड इमरान उल हक, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सरबरा शकील अहमद राणे, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक CEO डॉक्टर हसन दाऊद बट और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। जबकि चोंग येंग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज रिनमेन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के एग्जीक्यूटिव डीन डॉक्टर वांग वैन ने वीडियो लिंक के जरिए अपने खिताब में कहा कि चीन की तरक्की से पाकिस्तान इस्तिफादा हासिल कर सकता है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने अपने खिताब में चीन की इक्तिसादी तरक्की को मुख्तलिफ मंसूबों से हासिल होने वाले कामयाब नताइज के जरिए बयान किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC समेत दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इजहार ख्याल किया। शुरका ने कहा कि CPEC के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया, जिससे मुल्क में बराह रास्त रोजगार के मौके भी पैदा हुए, जबकि दोनों ममालिक को अब ज़राअत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मॉल इंडस्ट्रीज की अपग्रेडेशन और अवामी रवाबत के फरोग के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मसूद खालिद ने बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर चीन में तवील अरसे तक अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उनके दौर में पाकिस्तान में इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा शुरू हुआ। साबिक सफ़ीर का कहना था कि चीन में तैनाती उनके लिए एजाज़ की बात थी। चीन दरीना दोस्त है जिसके साथ ताल्लुकात ख़ास नौयत के हैं। चीन ने 2021 में गुर्बत के खात्मे का मंसूबा बनाया था जो उसने कामयाबी से पूरा किया। इस हवाले से 800 मिलियन अफराद को खते गुर्बत से निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम। CGTN उर्दू के टॉप व्यू इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला है उसी की एक नई वीडियो के साथ मैं काशान अकमल हाज़िर खिदमत हूँ। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, जिन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर चीन में खिदमात सर अंजाम दी, और ये इन्हीं का जो सफारतकारी का दौर था कि जब पाकिस्तान में जो खित्ते की खुशहाली का मंसूबा आज जिसे करार दिया जा रहा है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर शुरू हुई। आपने एक तवील अरसा चीन में पाकिस्तान की सिफारतकारी की। चीन की मजमूई दुनिया के लिए जो पॉलिसीज़ हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको आपने कैसे पाया? चीन में जो मेरी तैनाती थी वो तकरीबन 6.5 साल रही और मैंने पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से वहाँ पर खिदमत अंजाम दी। तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर तो ये एक बड़ी एज़ाज़ की बात है। वो इसलिए कि चीन जो है हमारा एक देरीना दोस्त है और उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक स्पेशल नौइयत के हैं। तो एज़ ए सिफारतकार, एज़ ए डिप्लोमेट, ज़ाहिर बात है मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी जब मुझे ये कहा गया कि आप चीन जाएं और वहाँ पर जाकर सिफारतकारी जो है वो करें। मैं वहाँ 2013 में गया था और 2019 में वापस आया। तो जब मैं वहाँ था तो उनका टारगेट था कि 2021 तक एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म करना। तो वो हदफ उन्होंने हासिल किया। तकरीबन 800 मिलियन
لوگوں کو پاورٹی ٹریپ سے نکالا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ چین اپنے پیس پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اور اپنی قوت بڑھا رہا ہے۔ چین کسی کے خلاف نہیں ہے، چین یقین رکھتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس میں اور ہارمونیس ریلیشن شپ۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اپروچ ہے جس میں چین کو کامیابی ہو رہی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بہت سے منصوبے اور بہت سے انیشیٹوز دنیا کو دیے ہیں۔ اس میں شیئرڈ فیوچر کا منصوبہ ہے، اور پھر دنیا کو سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسے میں گلوبل سیکیورٹی کا انیشیٹو بھی ہے۔ بہت سے انیشیٹوز انہوں نے دنیا کو دیے ہیں۔ موجودہ حالات میں دنیا کو جب آپ دیکھتے ہیں، ان انیشیٹوز کی کیا اہمیت آپ پاتے ہیں بطور ایک سفارتکار، ایک بین الاقوامی امور کے ماہر کے؟ یہ جو 3 انیشیٹوز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اناؤنس کیے، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اینڈ گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو، یہ BRI کے بعد آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیے ہم نے اسی پلینٹ پہ رہنا ہے، یہ ہمارا شیئرڈ فیوچر ہے۔ اس میں کچھ قومیں جو ہیں، کچھ ممالک جو ہیں وہ طاقتور ہیں، کچھ ممالک جو ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر چینی صدر نے یہ انیشیٹو دیے جو بڑے اچھے ہیں کہ آپ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو جو ہے اس میں آپ سیکیورٹی کیسے دنیا میں قائم کریں۔ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں اور کانفلکٹ کی طرف جانے کے بجائے کوآپریشن کی طرف جائیں، یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جو ہے اس کا لنک بنتا ہے UN کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے۔ تیسرا انیشیٹو ہے سویلائزیشنل انیشیٹو، کہ دنیا میں اتنی سویلائزیشنز ہیں، ہر ایک کا اپنا ریلیجن ہے، ہر ایک کا اپنا طور طریقہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاتمے کی طرف جائیں یا لڑائی اور مار کٹائی کی طرف جائیں۔ ہر سویلائزیشن نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، انٹرفیس کرنا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ہی تحت 5 دیگر راہداریوں کی بھی بات ہوئی۔ اس کو ایکسپرٹس جو ہیں وہ پاکستان میں سی پیک جیسے منصوبے کے جو ثمرات ہیں ان کی عوام تک رسائی کے لیے بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس وقت یہ چین سی پیک کو لے کر آیا تو اس وقت دنیا کا کوئی ملک جو تھا یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پیسہ لگانے کے لیے پاکستان کی مارکیٹ پر تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ تھی اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا تھا، یعنی کہ پیک پہ تھی تقریباً۔ تو چین نے دوستی نبھائی، تو جب چین نے کہا دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کی یہ ایک بڑی ہی اشد ریکوائرمنٹ ہے کہ بجلی کے دیکھیں نا، انڈسٹری آپ کی بند ہے، لوگوں کو روزگار بند ہے، بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں، بجلی نہیں ہے 8-8 10-10 گھنٹے ملک کے اندر۔ یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، خود فرسٹ کنٹری ٹو کم رائٹ ان دیٹ سچویشن، ان دیٹ کرائسس سچویشن۔ لیکن ان تمام فیکٹرز کے باوجود، ان تمام عوامل کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 26 سے 27 بلین ڈالرز کی چائنیز انویسٹمنٹ اب تک پاکستان کی اکانومی میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ 8,000 سے تقریباً 9,000 میگا واٹ بجلی جو ہے آپ کے سسٹم میں آ چکی ہے۔ پہلی ٹرانسمیشن لائن جو مٹیاری سے لاہور، وہ 800 کلومیٹر سے زیادہ پڑی ہے، 860 کلومیٹر۔ اسی طرح اور دوسرے منصوبے ہیں، آپ کا یہ ملتان سکھر موٹر وے ہے، بہت اچھا بنا ہے، اور ابھی منصوبے چل رہے ہیں۔ ML1 تو ابھی آئے گا، خیر وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس پہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا پاکستان۔ تو ڈیولپمنٹ کا پروسیس یہاں پر تیز ہوا، آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا، آپ کی انرجی پرابلم جو تھی وہ اس کو ٹیکل کیا گیا، اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار ملا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ 1.5 لاکھ لوگوں کو، اس سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملا۔ تو پاکستان کو اس وقت کیپٹل، ٹیکنالوجی اینڈ HR اپگریڈیشن، کیپیسٹی اپگریڈیشن چاہیے اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، انڈسٹریلائزیشن آف کورس۔ سیکنڈ فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس میں اور ایریاز جو ہیں تعاون کے لیے شامل کر دیے گئے۔ اب جو ہے اب ایگریکلچر، پاکستان ایگریکلچر کنٹری بہت اہم ہے، ایگریکلچر ایڈ ہو گیا، انڈسٹری ایڈ ہو گئی، سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈ ہو گئی ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے،
IT ہے, ٹورزم ہے, لائیولیہڈ پروجیکٹس ہیں. اب یہ سیکنڈ فیز میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی. عوامی سطح پر دونوں جانب جو قربت ہے اس کو بڑھانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے پورے پوٹینشیل کو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے, بہتر خوشحال مستقبل کے لیے استعمال کر سکیں, کون سے ایسے سٹیپس ہیں حکومتوں اور عوامی سطح پر جو کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سی پیک کا ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی بڑھی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن کے ڈومین میں اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹ تقریباً 28,000 ہیں چین میں. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے کافی بڑا اسکالرشپ ریسیپینٹ ہے چین سے, یعنی کہ وہ بھی تعلیم کے شعبے میں چین ہماری مدد کر رہا ہے. اچھا, جو ایک اور جو پازیٹیو چیز یہاں پر ہوئی کہ جب یہ سی پیک چلا تو ایک نئی سوچ آئی کہ ہمیں چینی زبان سیکھنی چاہیے. پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ زبان ایک دوسرے کی سمجھ سکتے, کلچر ایک دوسرے کی. تو یہاں چینی زبان کا جو ہے وہ زیادہ رواج جو تھا وہ چلا. اسی طرح وہاں پر اردو پہ کافی زور آیا. اور جب میں وہاں گیا تھا تو 4 اسٹڈی سینٹرز تھے پاکستان کے اوپر جو کام کر رہے تھے یونیورسٹی میں, وہاں کی چینی یونیورسٹی. اس وقت تقریباً 12 یا 13 کے قریب ہیں. تو یہ سب چیز میڈیا کے شعبے میں کافی تعاون بڑھا ہے. دیر از اے میڈیا فورم بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. پارلیمنٹیرینس کا ایک فورم ہے جو کہ یہاں سے جو جتنی بڑی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فورم ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ جو کہ ملتا ہے. پھر ہمارے سسٹر سٹی ریلیشن شپس ہیں چین کے ساتھ. تو جب ان سب چیزوں کو آپ کمبائن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جس میں کلچر کے ڈومین میں اور فلم آرٹ اس میں ہمیں چیزوں کو آگے لے کے جانا ہوگا اور اس پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ چینی عوام اور پاکستانی عوام جو ہیں اسکالرز, ایجوکیشنسٹ, آرٹسٹ, یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. تھینک یو سو مچ مسعود خالد صاحب. آپ نے بہت سے شعبہ جات میں جہاں پر بہتری کی بات کی اور عوام کے اندر ایک امید کی بھی آپ نے بات کی کہ جو منصوبے ہیں ان سے وہ کیسے نہ صرف خود کو تیار کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک روڈ میپ چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اور چین اور پاکستان کے ساتھ جو تعاون ہے اس کو بیس بناتے ہوئے خوشحال مستقبل کا سفر مل جل کر کریں. اور صرف اس سے پاکستان اور چین ہی نہیں, خطے کے دیگر ممالک بھی مستفید ہو سکتے ہیں. جہاں وقت ہے بریک کا, دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں 100 سیکنڈ میں چین سے جڑے ہاٹ ٹاپکس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. 2 سیشنز کے دوران چین کی حکومتی ورک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جدید صنعتی نظام کی تعمیر کو بھرپور طریقے سے فروغ دینا اور نئی معیاری پیداواری قوتوں کی ترقی کو تیز کرنا لازم ہے. تو نئی معیاری پیداواری صلاحیت کیا ہے, آئیے ہم بھی آپ کے ساتھ جانتے ہیں. 100 سیکنڈ میں چین سے جڑے ہاٹ ٹاپکس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک نیا لفظ سنجی سنچھانلی یعنی نئی معیاری پیداواری صلاحیت. یہ کیا ہے, آئیے ہم ایک ساتھ جانتے ہیں. یہ لفظ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے چین کے صوبہ ہیلونگ جیانگ کے دورے کے دوران بیان کیا تھا. نئی معیاری پیداواری صلاحیت ایک ایسی پیداواری صلاحیت ہے جو ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. نئی معیاری پیداواری صلاحیت کا لفظی مطلب روایتی پیداواری صلاحیت سے مختلف نئی پیداواری صلاحیت ہے. یہ ایک ایسی پیداواری صلاحیت ہے جو تکنیکی جدت پر مبنی ہے اور ترقی کے روایتی راستے سے ہٹ کر اعلیٰ معیار کی ترقی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یہ ایک ایسی پیداواری صلاحیت ہے جو ڈیجیٹل دور میں نئی معیاری پیداواری صلاحیت ہے. 18ویں صدی کے پہلے صنعتی انقلاب کی میکنائزیشن سے لے کر 19ویں صدی میں دوسرے صنعتی انقلاب کی برقکاری تک اور پھر 20ویں صدی میں تیسرے صنعتی انقلاب کی انفارمیٹائزیشن تک مختلف تکنیکی ایجادات نے انسانی ترقی کی رفتار کو نئی کامیابیوں سے متعارف کروایا. آج ہم بگ ڈیٹا, انٹرنیٹ, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بلاک چین اور مصنوعی ذہانت جیسے ٹول سسٹمز کی مدد سے چوتھے صنعتی انقلاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی ترقی کی رہنمائی کرتی ہے اور نئی معیاری پیداواری صلاحیت چین کی معیشت کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے مزید توانائی فراہم کر رہی ہے.
लियोमिंग चॉन सैनिटेशन वर्कर हैं जिन्होंने गार्बेज स्टेशन कायम किया है। वो रोजाना अपने कारकुनान की जानिब से लाए गए 10 टन से ज्यादा कचरे को ठिकाने लगाती हैं। कचरे के साइज को कम करने समेत तमाम अमल बिल्कुल खामोशी से मुकम्मल होता है। लियो का एक ही मकसद है और वो है माहौल को साफ रखना। ये लियोमिंग चॉन हैं, बीजिंग में एक सैनिटेशन वर्कर जिन्होंने घर जैसा साफ सुथरा गार्बेज स्टेशन कायम करने का दावा किया और ऐसा करके दिखाया भी। वो हर रोज अपने कारकुनों की तरफ से लाए जाने वाले 10 टन से ज्यादा कचरे को ठिकाने लगाते हैं। वो एक बाजीगर की तरह कचरे को साइज में छोटा करती और इसकी बदबू को कम करती हैं और ये तमाम अमल जादुई अंदाज में बिल्कुल खामोशी से मुकम्मल होता है। 垃圾站和家家户户的生活是分不开的。我就想着要把大家的生活环境卫生打扫好，让大家有个好心情。大家都说这儿既清洁又高效，为此还选举我为全国人大代表，我特骄傲。 NPC की नुमाइंदा की हैसियत से लियोमिंग चॉन अक्सर पार्क्स, सुपरमार्केट्स और सड़कों पर लोगों से उन चीजों के बारे में बात करती हैं जिनका वो सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। टीम के अरकान इस बात पर फिक्रमंद हैं कि कचरे की दर्जाबंदी कैसे की जाए। नौजवान वालिदैन बच्चों की तालीम के बारे में फिक्रमंद हैं। वो अरकान जो अपने शहरों से दूर यहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी तनख्वाह और जाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत चाहते हैं। लियोमिंग चॉन अपने इर्द गिर्द के लोगों के खदशात और तफक्कुरात को अपनी तजावीज़ में शामिल करती हैं और अपने इलाके के लोगों की इन उमंगों को लेकर नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शरीक होती हैं। 人民代表来自人民，人民信任我才选我当代表，我绝不辜负这份期待。 ये रॉन शेंग येन हैं, एक बहुत मसरूफ़ डॉक्टर जो अपने घर वालों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। चूँकि इनके शौहर और बेटी भी डॉक्टर हैं, इसलिए वो अक्सर खुद अपना ही मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि मेरे घर वालों के पास भी घर वालों के लिए वक्त नहीं है। 我认为啊，医生这个职业就是在时间手里抢生命。 अपनी मसरूफ़ तरीन औकात में वो एक दिन में 200 से ज़्यादा मरीजों को देखती हैं। वो खातिन जो रॉन शेंग येन के कामयाब इलाज से माँ बनी, वो अपने बच्चों की तस्वीर उन्हें भेजती हैं। रॉन शेंग येन का कहना है कि इनका मेहनत का सबसे बड़ा इनाम और इनके ख़ानदान के लिए एक कलील मुआवजा वो खुश और मुतमईन ख़ानदान हैं जिनकी खुशियों में वो अपना किरदार अदा करती हैं। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी के तमाम पहलुओं को देखा जाता है। रॉन शेंग येन यहाँ लोगों की सेहत के हवाले से उनकी ख्वाहिशात, मयार ज़िंदगी के हुसूल और ख़ानदान की खुशी और खुशहाली के लिए उनकी उम्मीदों का मुशाहिदा करती हैं। वो इन सब को उन तजावीज़ में शामिल करती हैं जिन्हें वो NPC की नुमाइंदा की हैसियत से पेश करती हैं। 人民代表为人民，我被选为全国人大代表，就是要着力解决人民群众急难愁盼的问题。 ये शेंग वे डोंग हैं, तियानजिन पोर्ट पर ट्रेलर टीम के ड्राइवर। इन्होंने ड्राइविंग करते हुए जितना फासला तय किया है वो 10 बार जमीन का चक्कर लगाने के बराबर है। लेकिन अब जिसे वो ड्राइव कर रहे हैं वो ट्रेलर नहीं है। 我把人工拖车的技能转化成数据，然后训练机器人完成任务。 पहले इसके साथी कहते थे कि वो रोबोट की तरह सख्त जान है। अब साथी उससे पूछते रहते हैं कि 那怎么给机器人当老师呢？ पहले उसने एक ऑपरेशन को 40 से ज़ायद हरकत में तकसीम किया जिससे इसके साथियों की काम की कारकर्दगी 2 गुना हो गई। अब वो काम करने के लिए रोबोट को कंट्रोल करता है। अब तियानजिन पोर्ट एक इंटेलिजेंट ज़ीरो कार्बन टर्मिनल बन गई है। NPC के नुमाइंदे की हैसियत से हर जुमे की सुबह शेंग वे डोंग नुमाइंदों के ओपन डे के दौरान
खुश दिली से लोगों की पेश करदा तजावीज़ और आरा सुनता है। सनती कारकुनों की तरबियत और इनमें बदलाव कैसे लाया जाए, मसनूई जहानत मैन्युफैक्चरिंग में नए मयार की पैदावारी सलाहियत कैसे पैदा कर सकती है, शिपिंग बेजिंग तियानजिन खलबे के इंतजाम को कैसे फ़रोग दे सकती है। इन तमाम मसाइल को हल करने के बारे में सोचते हुए उन्होंने निचली सतह से इन इख्तराई इक़दामात को NPC के नुमाइंदों की तजावीज़ में शामिल किया और इन्हें नेशनल पीपल्स कांग्रेस को पेश किया। 人民代表服务人民，人民赋予代表权利。我要将人民的意愿转化为国家的意志，从而更好地服务人民。 चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।